But I have to pose the first question to you, Rezi. एक ऐसा चैलेंज दैट इज मॉन्यूमेंटल, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हमने हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं पढ़ा था। 120 बहादुर सिपाही और उनके सामने 3000 दुश्मन। जब आपने इस कहानी को सुना, व्हाट मेड यू फील कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इट्स अ स्टोरी दैट डिजर्व्स टू लिव ऑन स्क्रीन? First heard the story when I was a kid. My father was in the army. And my brother, when I became a filmmaker, told me the story. And when I heard it, I had to make it. And then I tried to make it for another 5 years. Nothing happened. And then I met these boys, and it happened. So it's a labor of love. I hope people enjoy it. Ritesh, Excel Entertainment, redefining what cinema feels and sounds like. लेकिन ये कहानी, it's about truth, it's about valor, it's about bravery. लेकिन वो जो real है, वो जो सच है, how do you manage to make it as truthful when it comes to the real space? Good evening. I think it is a bit delicate, right? When you're trying to कहानी के जो real है and you're trying to bring it to a cinematic experience. So I think cinema has its own rhythm, its own structure. So I think it becomes delicate. But then you have such fine writers like Rajiv and Sumit who did the dialogues. And then you have Rezi, the captain of the ship. So I think it's turned out well. I think what we've managed to do is keeping that story authentic, because it was actually a story about their courage, the emotion, about what these 120 gentlemen did when they went into knowing that they were actually walking to their death. So I think it is very delicate, and all of them together have managed to bring it to life and kept it engaging, because the cinema, it has to have an immersive and engaging experience, and I think we've managed, and hopefully it will resonate. I think I can speak for everyone here in this place that हमने टीजर देखा, we started off with goosebumps. आप सबसे मिलेंगे, आप सबसे उनकी कहानियां सुनेंगे. Thank you so much for bringing this story on our screens on the 21st of November. Thank you so much, gentlemen. वो आके उस पे शब्द लिखते हैं, लेकिन यहाँ शब्द लिखे हैं जावेद साहब ने. तो आपने जब धुन बनाई और आपने पढ़े वो शब्द, वो लफ्ज जो जावेद साहब ने लिखे हैं, कंपोजर के अंदर का फैन बॉय जो है वो जाग जाता है. मैंने, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैंने जावेद सर के साथ पहले भी काम किया हुआ है, और तभी मैं फ़ैन बॉय था जब मैंने पहली बार काम किया था. हर बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, आई फर्स्ट टाइम ऑफ फैन बॉय, नर्वस फैन बॉय, एंड व्हेन ही राइट्स ऑन द ट्यून्स दैट आई गिव, एंड when he writes, the magic happens after that, because तब तक it's only half whatever I've composed. I don't know, I'm unsure ठीक है कि नहीं, but when the words come in and when he writes so beautifully, it's all complete and it feels magic. And it's a pleasure, absolute pleasure to always. I love him. I'm genuinely fond of him. I really love him. I think we all do. जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, any room, always a standing ovation, sir. Thank you so much. जावेद साहब, it's fascinating. और डांटिएगा मत, सोच के मैंने सवाल लिखा है कि आपने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, यू नेवर स्टूड ऑन द बॉर्डर, लेकिन जब आप लिखते हैं, वेदर इट इज अ संदेशे आते हैं, वेदर इट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ लक्ष्य, या ये गाना, एक और गाना है विच एवरीवन विल गेट टू एक्सपीरियंस. जावेद साहब, ऐसा लगता है कि आपने फौजियों के बीच वक्त बिताया है. वो जो महसूस कर रहे हैं, वो आप कैसे महसूस कर लेते हैं? दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. आई हैव स्पेंड सम टाइम विद द आर्मी पीपल व्हेन आई इंटेंडेड टू while the Operation Vijay was on, I had gone there. The battle was on, and after 1 year, General Arjun Ray invited me on the first anniversary of Operation Vijay, and Daras, which is the second most cold inhabitable place in the world after Siberia, that is where they have made a Shaheed Samarak, and only 2 people addressed the army that day, Arjun Ray and me, and he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it is another world. We only know army by their uniform. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people, and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Lakshya,
and again went back to the officers and seniors and got it corrected, the vocabulary, the expression, and so on and so forth. So that was a big exposure. But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say, that today Indian Army is the most respected institution of this country. The most trustworthy. We respect our army, which is a fact. So, I mean, they were kind enough to give me so much time. And then when this offer came for writing lyrics for this, so obviously that experience which I got during Lakshya came handy to me. ये जो दो फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, एक लक्ष्य जो 2004 में आई थी एंड अब 2025 में 21 साल बाद 120 बहादुर, दोनों में एक बात समान है, दोनों में फरहान थे। उस फिल्म में बतौर डायरेक्टर, इस फिल्म में बतौर एक्टर, आप ही के लिखे हुए शब्द एज अ फादर, एज अ राइटर, व्हेन यू सी योर सन लिविंग दोज इमोशंस परफेक्टली। जी जी, अब थोड़ा नेपोटिज्म तो होता है। नहीं हो जाता है ना। The only one with a shy smile was your son there. It's nepotism in reverse. थैंक यू सो मच, क्योंकि इस गाने से एटलीस्ट हमें ये समझ आया है, इसके जरिए ये समझ आया है दैट ये धरती सिर्फ जमीन नहीं होती है, ये माँ भी होती है। थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच अमित, एंड थैंक यू सो मच टू श्रेया घोषाल। बहुत बहुत शुक्रिया। I may or may not get this chance again, so I must use it, and I must congratulate Ritesh, the director, Farhan. I have seen the film and I am their worst critic. Generally they are not happy with me, but I must accept that they have made a very good film. Very good. Thank you so much जावेद साहब, थैंक यू। You could be louder guys, एक बार सब मिलके बोल सकते हैं दादा किशन की। इसे कहते हैं पावर हाउस, जिंदा दिली। सुखी पाजी, सलीम भाई, गुड टू हैव यू। सुलेमान भाई, सलीम भाई अभी रास्ते में है, एटलीस्ट पता लगा कहाँ, बैंड्रा से ही आ रहे हैं ना, राइट। सुखी पाजी, वो पैशन जो है वो साफ झलकता है जब आप गाते हैं। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है। जब गाना खत्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगिनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा। मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया। फिर मैं वहीं पे खड़े होके गाया। सलीम सुलेमान, आपने भी कहा ना सलीम, तो आप सलीम मेरे को कंसीडर कर सकते हैं। क्या बात है ना। तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूं। I'm a third person of तीसरा नहीं भाई, पहला किरदार। नहीं, आवाज तो आपकी निकलती है सबसे पहले। नहीं, लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता तो मैं आखिरी किरदार हूं, पर तीसरा कैरेक्टर हूं, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूं। कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिजाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो हमारी टर्न आती किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं। आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था, एनर्जी को संभाल को बरकरार रखना गाने में? अगर मुश्किल होता तो मैं गा ही ना पाता। मुश्किल वाला काम कुछ नहीं है। देखिए सुखी पाजी का मैं एक बोल देता हूँ, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, ही हैज एनर्जी, इट्स पावर एंड एनर्जी, और एक रूह तारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, इट्स ऑन। एंड सो द इमोशन comes from within, the power he has already. All we needed was beautiful words which Javed Saab has beautifully written. Of course. And that was it.
अगर इस गाने को सिर्फ कोई पढ़े और सोचे कि ये गाना किसको गाना चाहिए, that's the man, Sukhwinder Singh, and I don't think there is any other voice that would do justice to this song. इतना भी तारीफ मत करिए, बाकी के लोग खिलाफ हो जाएंगे। मैं एक बार इस कॉम्पोजिशन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब हम फिल्म में ये गाना जो है वो देख पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, रणभूमि का जोश, वीरों का वो बलिदान, जब आप दोनों कंपोज करने बैठे, स्लिम एंड यू, वो दर्द और गर्व दोनों को सुर में बंधे रखने के लिए कितनी मुश्किल थी? ये कॉम्पोजिशन एक बात है, और उसके ऊपर जो इमोशन जो आता है वो लिरिक्स से आता है। एंड जावेद साहब हैज डन, you can hear the magic of the lyrics and the emotion of the lyrics coming into the veerta of the celebration of the song, and the क्या बोलते हैं उसको, the bravery जो म्यूजिक के थ्रू से आ रही है, एंड द वॉइस दैट क्रिएट्स द पावर बिहाइंड द म्यूजिक। तो मैं डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, चैलेंजिंग शायद है थोड़ा सा, मगर व्हेन यू हैव माइस्ट्रोज लाइक जावेद साहब राइटिंग सच ब्यूटिफुल लिरिक्स, इट बिकम्स वेरी इजी। You spoke about power, and now it's time to meet the heart and soul of this film, a name that never takes the easy route. हर रोल, हर फिल्म एक नया चैलेंज. He's walked the road less traveled, always chasing, never comfort. Ladies and gentlemen, Farhan Akhtar. Farhan, we have heard 2 songs, लेकिन जब भी हम बात करते हैं courage की, and you look at all the films that you've done, वो courage वाली फिल्म, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, या अब 120 बहादुर, it always feels more than a role. Is it a reflection of what you're feeling उन वीरों के बारे में जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे? गुड इवनिंग। हाँ, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है, जब ऐसी कहानी मिलती है तो देयर इज अ फायर दैट गेट्स लिट इनसाइड द हार्ट, इन द माइंड. I want to first, I mean, this is the release of the music, so I want to firstly just say thank you to Amit, to Salim Suleiman, and to these 3 wonderful boys, Amjad, Nadeem and Amir. You will meet them very, very soon, because they really have captured the mood of the film, of the events in the film. जो जज्बा होता है फिल्म का, जो भावनाएं होते हैं एक सिपाही की, they've captured it very, very well. और मेरा बस ये मानना है यार कि honestly, as a director or as an actor or as producers, you get very, very few opportunities to do something that is way beyond you, that is way bigger than you. Right. You know, I feel very blessed that these opportunities have come. In the last 25 years of making movies, they've come periodically, you know, in gaps of maybe 3 or 4 years. So I don't want to jinx it. You know, I just want to keep working hard and keep inspiring people like Rezi to make movies, and that when they write scripts like this, you know, that they know that there's somebody out there, you know, who will give his heart and soul to make sure that it's put together, made well. I want to also say lots of love to my entire cast. Most of them that are sitting here, Rashi who's sitting there. Really guys, it was impossible to do this without you all. मतलब जो camaraderie आप देखेंगे पर्दे पे, it's actually there, वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है. It was impossible. We are truly a Paltan in the real sense. So thank you very much. जब सुखी पाजी ने गाना शुरू किया, and visuals अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 21 तारीख को, this is the war cry, this is the spirit of the film. Do you think it captures the essence of this story perfectly? यार अभी सुखी पाजी अपनी आवाज में जो भी कहेंगे, it'll capture the essence of anything. जो भी आप कहेंगे. But seriously, I mean, दादा किशन की जय is the battle cry of Charlie Company, who were part of 13 Kumail, and that is praise be to Lord Krishna, right? So that's what it was, and that is the right feeling and the right blessing with which we should start this journey. Absolutely. Sukhi Paji, Suleiman Bhai, Farhan, I think you said what needed to be told. Dada Kishan ki jai, ye gana aapne abhi suna, junoon jagaya hai. What a powerful moment. A time for a picture with the 3 of you together. Take this. Sukhi Paji, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं जावेद साहब आ जाते अच्छा था. अमित को भी बुला लीजिए. हाँ जी. नहीं, पर मैंने सलीम तो नाम अपना रख लिया, जावेद साहब नहीं रख सकता. पहला सवाल शायद कंपोजर से ही पूछ लेता हूं. यहाँ वो दुआ भी है
और साथ में वॉर का वो बैकड्रॉप भी, जब आप इस गाने को बना रहे थे उसको बैलेंस कैसे किया आप लोगों ने, क्योंकि वो साफ झलकता है इसमें? देखिए, इट्स अ टीम वर्क। बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है। हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का। वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है धुन की वो जावेद साहब ने ही दी है। थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए, हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया है। थैंक यू सो मच। I would like to thanks Javed Bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song, entire Excel team, Z Music Company, thank you so much for having us board. Thank you so much. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। Thank you. जावेद भाई, आशीष, आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यार भी इबादत बन गई है। नैनेरा लोभी में एक दर्द है दुआ है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, जब आपने ये गाना रिकॉर्ड किया, क्या आपको लगा कि ये एक मोहब्बत का गाना है या फिर शायद एक अलविदा, एक पत्नी का उस जवान के लिए जो सरहद पे जा रहा है? जी जावेद भाई। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जब ये गाना, जब इस गाने की ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी एक जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा, एक नहीं कर पाएगा। मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की। और आप यकीन मानिए, ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज्म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये 3 चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए। तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है। मैंने कोशिश पूरी की है। अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ। फरहान सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं जो भी आपकी फिल्में आती हैं, या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर्स, और बहुत टैलेंटेड है और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं। और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करिए, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही मैं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना, मतलब कि ये रखेंगे गान आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूजिक में आता है। जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो, ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर, एंड ऑफ कोर्स आशीष। ये हमारा पहला गाना है साथ में जी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और गाने के बारे में बताने से पहले मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी, बिकॉज
फरहान सर की मूवी थी और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी. Thank you so much for having me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी और आज वो मुझे मिल गया है. सो दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ. सो थैंक यू सर, थैंक यू. आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है. मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाए, मैं उनको पहली बार देखूंगी. आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है. सो थैंक यू सो मच. और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना. और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है आप सबके दिलों तक पहुँचे और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ. और थैंक यू सर, सच में हमारा पहला गाना है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए. जरूर जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एक्सेल टीम. थैंक यू फरहान सर, जावेद अख्तर साहब. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ. थैंक यू. A lot of warmth here on this stage. मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इस गाने को देखा है, exactly where it comes in the film. और शायद एक पत्नी क्या महसूस करती हैं उन भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस किरदार को निभाया है वो शायद हमें कुछ बेहतर बता सकें. प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल राशि खन्ना. Nervous? Yes, a little. Okay, I'll keep it rather simple. किरदार के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक जवान जो सरहद पे लड़ने जा रहा है, उनकी पत्नी सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत और बलिदान भी समझती है. जब आप ये रोल प्ले कर रही थी, क्या वो कहानी सिर्फ समझने की थी या आप उसे फील कर रही थी? और व्हाट अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर एंड्स अप फीलिंग? सभी को मेरा नमस्कार. थोड़ी सी नर्वस हूँ. आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ 120 बहादुर. देखिए, आर्मी वाइफ का होना बहुत, आई मीन टू बी इन दैट रोल इन इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज. और मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, every time I was in a scene I got very emotional, and I have to thank Farhan sir for being such a good support. उनके बिना मैं शायद ये नहीं कर पाती. and Rezi sir of course, the captain of our ship. इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ मैं इमोशनल हुई, and it did test me as an actor also, and I think I love being part of films that test me as an actor. Coming back to playing an army wife, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊंगी. I think आपको फिल्म देखनी होगी. आंखों ही आंखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है, और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट. क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि her loved one might not come back, you know, and that's a very heavy feeling to live with. तो मैंने पूरी कोशिश करी है to give my best, and I hope आप सभी को पसंद आए. Thank you. Thank you all of you truly, क्योंकि शायद ये गाना रोमांटिक सॉन्ग तो है, लेकिन इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ सोल्जर लीव्स बिहाइंड व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स अ सिचुएशन एज ग्रेव एज वॉर. थैंक यू सो मच जावेद भाई, आशीष, अमजद, नदीम, आमिर, and of course राशि. Thank you so much. Ladies and gentlemen, a photo opportunity for our members of the press. मेरा नाम धनवीर सिंह है और मैं श्री हरिराम सिंह जी का किरदार निभा रहा हूँ. इस फिल्म से पहले भी, इस फिल्म के बाद भी किरदार आते रहेंगे लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में आते रहते हैं. तो श्री हरिराम सिंह जी का किरदार एक बैज की तरह मैं चमका के चलूंगा अपने सीने पे हमेशा. नमस्कार, मैं अजिंक्य देव और मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ. ये फिल्म वाकई में दिल के बहुत करीब रहेगी. बहुत सारी फिल्में हो गई, बहुत होंगी भी, लेकिन ये फिल्म
बहुत खास रहेगी बिकॉज ऑफ द वे इट वाज शॉट, बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड. एंड थैंक यू द एंटायर एक्सेल टीम. थैंक यू रेजी, थैंक यू. एंड टू बी हियर ऑन द डायस विद जावेद साहब इज रियली एन ऑनर. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं जमादार जी का किरदार निभा रहा हूँ. एंड आई एम ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम. थैंक यू. हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है देवेंद्र अहरवार और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को उसके दोस्त प्यार से बैंगन कह के बुलाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिवाच है और जो किरदार मैं निभा रहा हूं उनका नाम है रामलाल यादव और वो अपने सभी साथियों के साथ पीछे नहीं हटे थे. इस टीजर में जो कहानी हम देख रहे हैं, ताज्जुब होता है कि 1962 की वो जंग, रेजांगला की एक कहानी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था और ये फिल्म जो है उस कहानी को सामने लेकर आ रही है. स्पर्श, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस रियल लाइफ हीरो को आप प्ले कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये कहानी हम तक ना पहुंचती. जी, बिल्कुल सही बात है और इस फिल्म के ज़रिए मुझे नरेटर बनने का भी मौका मिला इस फिल्म में. एंड आई थैंक माई स्टार्स एवरी डे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और बस यही कहूँगा कि जो ये ट्रिब्यूट है हमारी फिल्म 120 बहादुर, उन जवानों की करेज को, उनके हार न मानने वाले एटीट्यूड को, उनकी हिम्मत को, उसका पार्ट बनने के लिए मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ. सो थैंक यू सो मच. It's already turned into my favorite song. I'm sure that this is going to resonate with everyone. Javed Saab, Farhan, Amit, रेजांगला 1962. अब वो कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है. आज ऑडियंस जो देखेगी उस फिल्म को, एक अंश यहां पे बैठा हुआ है, 21 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी. इस पल में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जावेद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. थैंक यू. देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. और सही बात है. फिक्शन में यह कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूं, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है. जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा. ट्रूथ हैज नो सच फियर. ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन्स ट्रूथ. ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता. ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू. ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी के पास तो कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो. मगर ये सच है. और जब आप इस फिल्म को देखेंगे, व्हेन यू विल गो टुवर्ड्स द एंड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे. वो बिल्कुल सही बात है जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ था और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया. इट्स अनबिलीवेबल. द ओनली रीजन दैट यू हैव टू बिलीव इट अंडर द सन इज दैट इट रियली हैपेंड. फरहान, अमित, ये अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और फॉर मी एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोजर, इस चैप्टर के साथ इन वट एवर वे जुड़ने के लिए, एज अ कंपोजर, एज अ गाना बनाना, like from the smallest part, I'm like the very tiniest part of it, to be part of such a historical thing. It's a proud and absolutely मुझे बहुत गर्व है that I'm part of this cinema, this film, and I'm forever thankful that with Excel, this is my first film. We always tried before to work in the past, but this is my first film, and I'm glad that this is the film that I have debuted with Excel, and I hope it's not the first one, and not the last. And I'm absolutely thankful to you for having me on board. Thank you, Farhan sir, Rezi sir, and Ritesh sir, and everybody involved. I'm very grateful to be a part of this cinema. Thank you so much. Rezi, we've all gathered here to listen to the songs, but it's turned into such a visual experience. 17 more days, and the world will not only receive this film, it will become the audience's film. What are you feeling at this moment? I'm very nervous. Very nervous. All right, ladies and gentlemen. Look at the man I'm working with. Look at my producer.
Look at the body of work. It's only my second film. But I'm very proud to present this film, guys. So, you know, and with a wonderful cast like this and my crew there, all you guys, thank you. Change anything when you were singing the song ताकि चार जो हैं वो एक लगे? पहली बात तो जब हमें पता लगा था कि जावेद साहब ने लिखा है तो वी वर लाइक सो ओवरवेल्म्ड कि इस गाने को निभाना कितना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है हम लोगों की हम अपना बेस्ट दें। जब हमने सुना जैसे सर ने कंपोज किया, अमित त्रिवेदी सर ने कंपोज किया तो वी वर सो इनटू इट कि वो अपने आप ही एक क्या बोलते हैं उसको एक ऑरा बन जाता है और एक ऐसी इन्वायरमेंट बन गया कि हम लोगों ने अपना सोल डाल दिया उसमें और वो मतलब एकजुटता से हमने गाया और लाइक वो आप सब सामने मतलब हमने प्रेजेंट किया। तो ऑल थैंक्स टू अमित त्रिवेदी सर और जावेद सर, बहुत बहुत बड़े फैन हैं हम आपके और लाइक बहुत बहुत हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इस मूवी में फरहान सर की मूवी में जो है गाने का मौका मिला। सो थैंक यू एवरीवन। शुभदीप, मेरे लिए तो मेरे पैर कब कांप रहे हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मैं आज ही सुबह सर कनाडा से भाग के आ गया हूँ और अभी फिर से जा रहा हूँ कनाडा। तो ये मेरे लाइफ का पता नहीं एक ऐसा मोमेंट है कि मैं अपनी ग्रेवयार्ड तक लेके जाने वाला हूँ एंड मैं आपका एक पैर छूना चाहता हूँ। नहीं, इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी एंड I cannot say, and thank you so much sir for always supporting me and it means like world for me. Thank you so much. एक बचे हुए आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ जाने वाला है गाना एंड बस मैं गा दिया और मुझे आज पता चला कि आ रहा है तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मान रहा हूँ और शायद गाने में ही इतना पावर है कि वो सब कुछ जो सोल है वो एक साथ कलेक्ट होके आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो भाई आप परफेक्ट हो क्योंकि आर्मी में भी यही होता है, ऑर्डर दिए जाएं तो सिर्फ फॉलो करो। जो सरहद पे आज लड़ रहे हैं, जो सरहद पे 1962 में लड़े, शायद हम उनका नाम नहीं जानते हैं लेकिन वो जो हमारे लिए करते हैं वो हमें आजादी देते हैं। वी नाउ आर मीटिंग मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र यूनिट, द चार्ली कंपनी। बहुत जरूरी है कि एक बार जिन्हें आपने स्क्रीन पे निभाया है उनके बारे में हम जान सकें। इफ यू कुड जस्ट, कैन आई हैव अ माइक्रोफोन स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, राइट फ्रॉम यू इजाज, फ्रॉम दिस साइड इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट, बताएं। नमस्ते, मैं उजाज खान और मैं इन 120 बहादुरों का कमांडिंग ऑफिसर का किरदार प्ले कर रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आशुतोष और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे स्वर्गीय धर्मपाल दाहिया साहब का किरदार निभाने का मौका मिला है। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मंच पर विराजमान जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, बड़े मैं कांप जाता हूँ फिल्म में तो डायलॉग वाला मसला अलग होता है लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि ये मैं मंच शेयर कर रहा हूँ आदरणीय श्री जावेद साहब के साथ में, फरहान अख्तर साहब, पूरी टीम साथ में है। मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है और मैंने जयराम काका का किरदार प्ले किया फिल्म में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं साहिब है मेरा नाम और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ तो मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम मन्ने है और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर टुडे एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द टीम ऑफ 120 बहादुर। लव यू गाइस। हेलो, मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं सिपाही निहाल सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ, LNG ऑपरेटर, जो अभी भी जिंदा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट। थैंक यू रेजी सर, थैंक यू अनमोल सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्पर्श वालिया है और मैं फिल्म में रेडियो ऑपरेटर श्री रामचंद्र यादव जी का किरदार निभा रहा हूँ। वो नौजवान जो सरहद पर ये सोच कर गए थे कि देश की सेवा करने का मौका मिला है, उस कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला है जिसके कमांडर मेजर शैतान सिंह हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो इतिहास के इतने अहम पन्ने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
Ivan. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज इवान बतेना और मैं जेसीओ जमादार सूरजा राम का रोल प्ले कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इस पिक्चर से मुझे एक नया परिवार मिल गया है। ये मेरे भाई मस्त, all my brothers are here on stage today. It's been an absolute fabulous experience. You get very few chances in life to be part of such kind of films and such kind of films being made. So thank you Ritesh, thank you Farhan, thank you to the entire team. Javed Saab, amazing work as always. Thank you so much. I'm overwhelmed and thank you for letting me be a part of this. I love all the music. Now I have 3 anthems. I have Chak De, I have Dangal and I have 120 Bahadur.